Hello, this is the lecture number 9 for the chapter Limits and Derivative for the class 12. Class 11th. In the last lecture, we have discussed the derivative of the trigonometric functions, all 6 trigonometric function and derivative of x to the power n and derivative of constant. Now, starting with the exercise 13.2, where you have to find the derivatives of x square minus 2. Now let us call it equal to f, or you can y, or you can let it equal to fx. And you have to find the derivative of this function at x is equal to 10, that at a particular point. So you can write like this: derivative d by dx is equal to derivative of d upon dx of x square minus derivative of, that is constant 2. So derivative of x square is n x की power n minus 1 and the derivative of constant is 0. So it is 2x. So this is the derivative, and you have to find the derivative of this function at x is equal to 2. At x is equal to 10, sorry. So it means you have to replace the value of x by 10. So the derivative of this function at x is equal to 10 is 20. अगर y है तो इस तरह से डेरिवेटिव लिखना है, अगर fx है तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा f dash x is equal to कितना 2x, and you have to find the derivative of this function at x is equal to 10. So it means you have to replace the value of x by 10, that it is equal to 20. This is how you have to find the derivatives. Now in question number 2 also, let us call the function b fx. It is equal to 99x, and you have to find the derivative of this function at x is equal to 100. So first of all, find the derivative of this. It is 99 derivative of x आपको पता करना है, and the derivative of x we know it equal to 1. So 99. So its first derivative is a constant function, and the value of this derivative at x equal to 100 will remain as 99 because it does not depend on the value of x. So the derivative of 99x at x equal to 100 is 99. Derivative of x is 1. After that, we have x is equal to 3. Question number 3. fx is equal to x, let us call it, and the derivative of this function is derivative of x is 1, and you have to find the derivative at x is equal to 1. So derivative of x equal to 1 ही रहेगा, because the derivative of this function does not depend on the value of x. Now after that, we have to find the derivative of the following function by first principle. तो first principle से इसका आपको derivative find करना है. तो first principle आपका डेरिवेटिव था f dash x is equal to f x plus h minus fx upon h limit h goes to 0. तो कितना आ जाएगा ये? तो x plus h का होल क्यूब माइनस 27, ये तो एफ एक्स प्लस एच हो गया. एफ एक्स आपका एक्स क्यूब माइनस 27 है अपॉन एच लिमिट एच गोज टू 0. एफ एक्स प्लस एक्स की जगह एक्स प्लस एच रिप्लेस करा, एफ एक्स ये है. नाउ सिंप्लीफाई इट, इसको आप सिंप्लीफाई करिए. ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर इंटू बी प्लस 3a इंटू बी स्क्वायर माइनस 27, ये माइनस का एक्स क्यूब प्लस का 27 अपॉन एच लिमिट एच गोज टू 0. देखो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल हो गया, ये 27 से 27, तो एच क्यूब प्लस 3x स्क्वायर एच प्लस 3x एच स्क्वायर अपॉन एच लिमिट एच गोज टू 0. आप न्यूमरेटर में h कॉमन लीजिए, तो एच स्क्वायर 3x स्क्वायर प्लस 3x एच अपॉन एच लिमिट h गोज टू 0. h से h कैंसिल हो गया, तो रिप्लेस h गोज टू 0, तो 0 हो गया. 3x स्क्वायर हो गया प्लस ये 0 हो गया. तो 3x स्क्वायर इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस x क्यूब माइनस 27 बाय द फर्स्ट प्रिंसिपल. द फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला है एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच लिमिट x गोज टू 0. दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट पार्ट. In the second part also you have to find the derivative by the first principle. The function is fx is equal to x minus 1, x minus 2. So its derivative is, again the formula is fx plus h minus fx upon h limit h goes to 0. लगाइए फॉर्मूला. fx plus h कितना हो जाएगा? x plus h minus 1
एक्स प्लस एच माइनस 2, ये एफ एक्स हो गया, माइनस एफ एक्स ये हो गया, अपॉन एच लिमिट h goes to 0. So this is the derivative by using the first principle. Multiply and open the bracket. आप इसको multiply करके bracket open करिए तो यह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एच माइनस 2x, x को इन तीनों से मल्टीप्लाई करा, फिर h से करिए तो एक्स एच प्लस एच स्क्वायर माइनस 2h, फिर -1 से करिए माइनस एक्स माइनस एच प्लस 2, ये तो आपका इसका मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब इसका मल्टीप्लिकेशन करिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 अपॉन एच लिमिट h गोज टू 0। जब इस तरह क्वेश्चंस होते हैं विल व्हेन वी हैव द h इन द डिनोमिनेटर विल गेट ओनली दोज टर्म इन द न्यूमरेटर विच हैव ओनली h, केवल वही टर्म्स बचेंगे जिसमें h हो रहा होगा। देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, एच एक्स एक्स यहाँ पर एक ये एक्स एच हो गया एंड वी हैव 2xh, माइनस का 2x एंड माइनस का 3x और प्लस का ये इससे कैंसिल हो गया, x वी हैव यूज इज एच स्क्वायर और हमारे पास केवल h स्क्वायर बचा है, माइनस 2h माइनस h माइनस 3h और प्लस 2 माइनस 2 ये कैंसिल हो गया। तो हमारे पास लिमिट h गोज टू 0 और h इन द डिनोमिनेटर, तो हमारे पास h कॉमन आ गया, 2x प्लस h माइनस 3 अपॉन h लिमिट h गोज टू 0। देखिए h से h कैंसिल हो गया, जब 0 रखेंगे यहाँ पर तो 2x प्लस 0 माइनस 3, तो 2x माइनस 3 इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस x माइनस 1 into x minus 2 by using the first principle, fx plus h minus fx upon h limit h goes to 0. First principle to find the derivative. Again we have the next part is 1 upon x square, the third part is x is equal to 1 upon x square। तो first principle का formula हमारे पास है f is equal to f x plus h माइनस एफ एक्स अपॉन एच लिमिट एच गोज टू 0। तो लगे एफ एक्स प्लस एच कितना हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस एफ एक्स अपॉन एच लिमिट एच गोज टू 0, इसका डायरेक्टिव हो गया। एलसीएम लेके माइनस कर लिए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू एच लिमिट एच गोज टू 0। सिंप्लीफाइड एक्स स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर माइनस का 2xh अपॉन एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू एच लिमिट एच गोज टू 0। देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, इसमें आप माइनस एच कॉमन ले लीजिए तो h प्लस का 2x अपॉन हमारे पास x प्लस एच का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू एच, सिंप्लीफिकेशन कराए ओनली, and the denominator h will be cancel out with this। now put h is equal to 0, तो ये 0 रिप्लेस करा, यहाँ पर x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर x स्क्वायर हो जाएगा, तो यू आर गेटिंग माइनस 2x अपॉन एक्स की पावर 4 माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब। तो वी आर डूइंग द डेरिवेटिव बाय द फर्स्ट प्रिंसिपल इन क्वेश्चन नंबर 4. In the fourth part you have to find the derivative of this x plus 1 upon x minus 1 by using the first principle। तो again the formula as usual, fx plus h is equal to f x plus h minus fx upon h और लिमिट h goes to 0। तो fx plus h क्या होगा, यहाँ पर रखिए, तो यह आ जाएगा f डैश x विल बी इक्वल टू x प्लस एच प्लस 1 अपॉन x प्लस एच माइनस 1, ये तो एफ एक्स प्लस एच हो गया, एफ एक्स हमारा ये है अपॉन एच लिमिट एच गोज टू 0। सिंपली आप एलसीएम लेके उसको माइनस करिए, एक्स प्लस एच प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 माइनस एक्स प्लस एच, बल्कि एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस एच माइनस 1 अपॉन
x प्लस एच माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन इंटू एच लिमिट h गोज टू 0. तो एलसीएम लेके इसको हमने माइनस करा एंड यू आर गेटिंग दिस. तो मल्टीप्लाई these two, multiply and open the bracket, you'll get only those term in the numerator which will have h common. तो h common लेके h से cancel हो जाएगा, and when you take the limit you'll get the derivative of this function as x minus 1 का whole square. It will be x minus x plus 1 minus into x plus 1 into 1. तो विल गेट माइनस का 2 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर. ये आपका इसको सिंप्लीफाई कर यू नीड 2 to 3 स्टेप टू डू दिस क्वेश्चन. सो वी हैव डन दिस क्वेश्चन नंबर 4 बाय यूजिंग द डेरिवेटिव, बाय यूजिंग द फर्स्ट प्रिंसिपल से हमने डेरिवेटिव निकाल लिया. क्वेश्चन नंबर 5, इट इज गिवन दैट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 100 अपॉन 100 प्लस एक्स की पावर 99 अपॉन 99 up to x की power 2 upon 2 plus x plus 1. You have to prove that f dash 1 is equal to 100 times f dash 0. So first of all you find the derivative of this. It will be 1 upon 100 derivative of x की power 100. Similarly 1 upon 99 x की power 99 का derivative करना है आपको. Similarly here 1 upon 2 derivative of x square plus derivative of this x plus derivative of 1. इसका डेरिवेटिव हमने फाइंड कर लिया. नाउ द डेरिवेटिव x की पावर 100 इज 100 x की पावर 99 अपॉन 100. ये हो जाएगा 99 x की पावर 98 अपॉन 99. ये x स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x अपॉन 2. x का डेरिवेटिव 1 और लास्ट का टर्म का 0. तो हमारे पास x की पावर 99 बचा, 98 बचा, अप टू x प्लस 1. तो बी वेरी केयरफुल, यू हैव टू फाइंड हाउ मेनी टर्म्स आर देयर. x की पावर 99, x की पावर 99 अप टू x 100 टर्म्स ही हो गई, 1 से लेकर 99 टर्म्स हो गए और प्लस ये, तो ये आपकी 100 टर्म्स है. तो बी वेरी केयरफुल. तो यू हैव टू फाइंड f डैश 1. पहले f डैश 1 पता करना है. तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 कितने के इक्वल हो गया, ये 100 के इक्वल हो गया. 1 प्लस ये 1 की पावर 99, यहाँ तक तुम्हारी कितनी टर्म्स हैं 100 प्लस 1. फिर f डैश 0 भी निकालना है. तो ये 0 0 और प्लस 1, तो कितना आ रहा है, ये 1 के इक्वल आ रहा है. तो हमें ये पता चल गया कि देयरफॉर जो f डैश 1 है वो 100 टाइम्स f डैश 0. f डैश 0 1 है, ये 100 है, उसका मतलब f डैश 0 को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे f1 के इक्वल आएगा. यही आपको प्रूफ करना था. यू हैव टू प्रूव, यू सी इन योर बुक्स, यू हैव टू प्रूव दैट f डैश 1 इज इक्वल टू 100 टाइम्स f डैश 0. तो मैंने पहले f डैश x निकाल लिया, उसमें x की जगह 1 रिप्लेस कर लिया. f डैश 0 मतलब x की जगह 0, तो हमें ये 100 ये 1, तो इट मीन्स f डैश 1 इज इक्वल टू 100 टाइम्स f डैश 0. क्वेश्चन नंबर 5 था ये. Now in question number 6 what it says that हमें एक फंक्शन दे रखा है. इट इज x की पावर n प्लस a x की पावर n माइनस 1 प्लस a स्क्वायर x की पावर n माइनस 2 अप टू a की पावर n माइनस 1 x प्लस a की पावर n. इसका हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है. यू हैव टू फाइंड दी डेरिवेटिव. तो बहुत आसान है, सिंपल डेरिवेटिव आप यूज़ करिए. यहाँ पर डेरिवेटिव ऑफ x की पावर n पता करना है. यहाँ a डेरिवेटिव ऑफ x की पावर n माइनस 1 पता करना है. यहाँ पर a स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ x की पावर n माइनस 2 पता करना है. अप टू a की पावर n माइनस 1 डेरिवेटिव ऑफ x पता करना है. एंड इन द लास्ट डेरिवेटिव ऑफ a की पावर n. नाउ n की x की पावर n का डेरिवेटिव यू नो इट, n x की पावर n माइनस 1. फिर आपका x की पावर n माइनस 1 का डेरिवेटिव n माइनस 1 x की पावर n माइनस 2 n x की पावर n माइनस 1. ये a स्क्वायर x की पावर n माइनस 2 का हो गया x की पावर n माइनस 2 x की पावर n माइनस 3 अप टू a की पावर n माइनस 1 यहाँ पर. और x का डेरिवेटिव हमें पता है 1 और a की पावर n एक कांस्टेंट है. a की पावर n इज कांस्टेंट, तो इसका डेरिवेटिव 0. तो ये केयरफुल रहना है. a की पावर में ये फॉर्मूला लगा लेना, n x की पावर n माइनस 1 इट इज a की पावर n
both are constant, a b constant, n b constant, so its derivative is 0. So this is the derivative of question number 6. We'll continue in the next lecture. Thank you.